Good evening, class. In previous video, we were studying the chapter of cells, but I consulted to Bimla ma'am. She told me that cell and tissue, both the chapters are completed. Now today we are going to start a new chapter. Okay. Now the chapter is diversity in living organisms. So firstly, I want to tell you the meaning of diversity. Diversity means it is a special type of features which is found in all over the world, which provide different characters of any living beings to in a different way. It is called diversification. Diversification का मतलब होता है किसी एक चीज को या किसी भी बहुत सारे हम लोग टर्म से जानते हैं, उसे हम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन जनरली आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के देखने को मिलते हैं। दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। सपोज इफ यू विल विजिट इन द जू, अगर आप जू में जाते हैं, यू विल फाउंड देयर इज अ सेवरल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, and animals was also wandering here and there, and these are the diversity of animals। तो उनको हम diversities of animals कहते हैं क्योंकि वहां पे अलग अलग प्रकार की diversities हमको देखने को मिलती है। Second point is that when you will visit in a garden, you will see that there is a different types of plants is also available, like mango, guava, banyan tree। Okay, now these all are the plants and these all are the animals. If you will follow and if you will see in different types of country, you will find that there is a too much diversifications। Okay, now firstly I want to tell you that the diversification of organisms on the basis of their nature in our world। So if we're talking about the number of species, so this is your old data। Okay, it is not correct because some of the values and some of the also data are generally enhanced। Okay, now the 1.7 to 1.8 millions of species are total found in all over the world, and second, the animals are about 1.25 million। 1.25 millions means there is a 1.25 millions of animals are surrounding all over the world, and insects are found in 1.025 million in all over the world। These all are the approximate data collected from the entire book, by which it is generally changed every year। Okay, now next the plants are about 0.5 million। ओके, जो प्लांट्स की जो वैरायटी है वो करीबन हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड में वो 0.5 मिलियंस के अप्रॉक्स में देखी जाती है। सो टुडे वी हैव डिस्कस द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन और डाइवर्सिफाइड। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज लिविंग। जनरली what we know about the living means something that spend and have a life and also correlate with the lots of metabolic and physical process is considered as living beings। living beings का हम generally simple form में ये समझते हैं कि जो भी organism whether it is made up of cells group of cells make tissues make organ and organ make organ system। ठीक है, organ system and then organ system make complete organism। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, द ग्रुप ऑफ सेल्स, सेल इज द बेसिक एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बींग्स। किसी भी लिविंग बींग्स का जो सेल होता है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। एंड ग्रुप ऑफ सेल्स मेक टिश्यूज एंड टिश्यू मेक्स organ makes organ system and organ system makes organism means living beings। living beings means animals including human beings and animals also। Okay, now the living beings and diversification is totally considered in our topic। So after that we have to clear about the classification। So we know that there is a too much classification of animals, plants, insects, okay, are wandering and founding in most of the world also, and there is a problem to identify clear। That's why the classification has been given by Carolus Linnaeus and Aristotle was the first and second Carolus Linnaeus, by which ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड टू नोइंग बेटर देन। ठीक है, जो पहले जनरेशन में क्या था कि जो भी ऑर्गेनिज्म होते थे उनको इजीली क्लासिफाई करना काफ़ी प्रॉब्लमेटिक था, क्योंकि जगह जगह पे उन्हीं ऑर्गेनिज्म को किसी और के नाम से जानते थे या कहीं कहीं पे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म मिलते थे जिसमें हमें क्लासिफिकेशन करना पॉसिबल नहीं हो पाया। सो दैट the scientist has developed the new technology and they provided the proper classification
टू अरेंज ऑल द ऑर्गेनिज्म इन देयर प्रॉपर ऑर्डर। उन्होंने क्या किया कि जो भी ऑर्गेनिज्म होते थे उनका उन्होंने ग्रुपिंग कर दिया और वो सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रॉपर ग्रुप में कंसीडर्ड होते थे। लाइक अगर हम मैंगो की बात करते हैं तो मैंगो हमारे इंडिया में कुछ और बोलते हैं कहीं और, ठीक है, वो मैंगो तो एक इंग्लिश नाम है, लेकिन अगर हम हिंदी की बात करते हैं आम, तो उसको जगह जगह पे हिंदी वर्ड में ही बहुत अलग अलग तरीके से जाना जाता है। बट साइंटिस्ट हैज गिवन द लैटिन वर्ड द मैंगो। मैंगो मीन्स होता है, अगर हम लैटिन वर्ड से जाने तो लैटिन वर्ड हमारा पूरे वर्ल्ड में चलता है, इसे हम कहते हैं मैग्निफेरा इंडिका। ओके, मैग्निफेरा इंडिका, दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। अगर आम की बात करते हैं, जनरली इन इंडिया वी नो दैट आम मीन्स मैंगो, मैंगो होता है। फॉरेन कंट्री में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस दे जनरली नो द मैंगो इज अ, ओके। एंड अगर मैग्निफेरा इंडिका अगर पूरे हम इंटायर वर्ल्ड में बोलते हैं तो इंटायर वर्ल्ड हमारा पूरा मैग्निफेरा इंडिका के नाम से जानता है, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे वर्ड हैं जो मैंगो के नाम से या फिर आम के नाम से उन्हें नहीं जानते होंगे। दैट्स व्हाई द क्लासिफिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल फॉर ऑर्गेनिज्म टू प्रोवाइड इन अ प्रॉपर वे टू अरेंज ऑल द ऑर्गेनिज्म। सो नेक्स्ट टॉपिक इज दैट ग्रुपिंग। Grouping means generally if we identified most of the animals and plants, so firstly we have to group one by one, okay, to identify in future। अगर हमने किसी को पहचान भी लिया, आइडेंटिफाई कर लिया है, तो अब हमें उसे क्या करना है, ग्रुपिंग करना है। ग्रुपिंग मीन्स होता है कि किसी को प्लांट्स है तो पूरे के पूरे प्लांट्स कैटेगरी में, एनिमल्स है तो एनिमल्स कैटेगरी में, इंसेक्ट है तो इंसेक्ट की कैटेगरी में, फ्लाइज है तो फ्लाइज की कैटेगरी में, ठीक है, इंसान है तो इंसानों की कैटेगरी में। तो ये सारा का सारा जो क्लासिफिकेशन था, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ग्रुपिंग में आता है। ग्रुपिंग इज द मोस्ट स्पेशल एंड बेनिफिशियल प्रोसेस आफ्टर द classification। Grouping is must necessary to provide basic structure and functions to establish the all the types of living organism, ठीक है। उस ग्रुपिंग के तहत हम उस जानवरों को एक ग्रुप में रखने के बाद हम इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते थे। नाउ नेक्स्ट द पॉइंट इज दैट naming। after grouping in the proper group we have to give the proper name, okay। अगर हमने ग्रुपिंग कर दिया, अब उसे हमें कोई अच्छा एक नामकरण करना होगा, दैट इज कॉल्ड नेमिंग। नेमिंग मतलब अगर मैंने मैग्निफेरा इंडिका बोल दिया, वी नो दैट देयर इज अ वैरायटीज ऑफ मैंगो। हमारे आम की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, ठीक है, लेकिन अगर मैंने उसका एक नामकरण कर दिया मैग्निफेरा इंडिका, तो वो किसी भी प्रकार का आम है लेकिन उसको हम एक ही नाम से जानेंगे, मैग्निफेरा इंडिका या फिर मैंगो, ओके। चाहे वो कोई भी आम हो, आमों में भी बहुत सारी वैरायटीज होने के कारण भी साइंटिस्टों ने एक ही उसका कंसीडर्ड नाम बता दिया, साइंटिफिक नेम, जिसको हम कहते हैं मैग्निफेरा इंडिका। तो पूरे वर्ल्ड में, इंटायर वर्ल्ड इंक्लूडिंग अवर इंडिया आल्सो, वी नो दैट द मैंगो इज कंसीडर्ड एज मैग्निफेरा इंडिका। इससे क्या प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया कि तरह तरह के जो ऑर्गेनिज्म या तरह तरह के जो भी प्लांट्स प्रोडक्ट्स या पौधे वगैरह होते थे, इनको दूसरी जगह पे आइडेंटिफाई करने में हमें प्रॉब्लम नहीं हुआ, और हम क्या किए, उनको इजीली आइडेंटिफाई उनके बेसिस पे हम कर सकते थे, क्योंकि उनका साइंटिफिक नेम जो है अरिस्टोटल, और बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो था हमारा वो हम पढ़ेंगे बाद में, उसमें कैरोलस लिनियस का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले था, जो कि वो साइंटिस्ट थे। Now next, after the giving proper naming, the features of living beings is also considered, okay। अब हम डिस्कस करते हैं कि features of living beings। We know that living beings is a special features of our earth। without living beings life cannot be possible। बिना living beings के लाइफ तो पॉसिबल हो ही नहीं सकती, इंक्लूडिंग एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, इंसेक्ट्स वगैरह, सबका अपने अपने जगह पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले होते हैं, ठीक है। बट मोस्ट अगर मैं बात करता हूँ लिविंग बींग्स की, तो लिविंग बींग्स प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन अ इको फ्रेंडली एंड प्रिपरेशन ऑफ एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट को बनाने में, इको फ्रेंडली करने में लिविंग बींग्स का सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। एंड द इंपॉर्टेंट रोल इज दैट they have to provide basic information, basic मेंटेनेंस ऑफ आवर एनवायरनमेंट, बेसिक क्लीनलीनेस, बहुत सारी चीज ये जो लिविंग बींग्स है वो हमें प्रोवाइड करते हैं। सो आफ्टर दैट वी हैव टू गो थ्रू द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ लिविंग बींग्स। अब अगर हम बात करते हैं लिविंग बींग्स की, तो वो कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो इनको लिविंग बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि जनरली हम जानते हैं लिविंग बींग्स जनरली दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। अगर उन्हें कोई छूता है तो वो सर्टेन रिएक्शंस करते हैं, उस चीज को पीछे खींचते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन जो आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा। और नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग मींस सर्टेन दे हैव नो लाइफ, जिनमें जान नहीं है, अगर आप उन्हें कोई भी रिएक्शन करते हो
कोई भी फिजिकल या केमिकल जो भी रिएक्शन करते हो तो उनका कोई भी आपको स्टिमुलाई देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। उनके बॉडी स्ट्रक्चर में डिसऑर्डर देखने को मिल सकते हैं, बट वो फिजिकली फॉर्म में आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देंगे। एंड दैट इज द टू मच डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। आई विल ऑल्सो टेल यू द मीनिंग एंड difference of living and non-living beings. Okay, now we are going to first property of living beings, that definite shape and size. Suppose I am taking an one example of human beings. Human beings have proper shape, proper definite size and proper maintenance of their body structure. अगर एक इंसान की बात करता हूँ तो एक इंसान का प्रॉपर डिफाइंड शेप होता है, साइज होता है, बॉडी स्ट्रक्चर होता है, विच में ग्रो ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा उसके बॉडी स्ट्रक्चर में भी चेंजेस देखने को मिलेगा। एक छोटा सा बच्चा, टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ स्मॉल चाइल्ड इज ग्रोइंग डे बाय डे। वो हर एक दिन बड़ा होते जाएगा, आज वो छोटा है कल थोड़ा सा और बड़ा, ऐसे करते करते धीरे धीरे उसकी जो बॉडी की जो सेल्स है, टिश्यूज है, ऑर्गन है, ये सब डेवलप होते होते वो जो छोटा सा बच्चा है वो धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। सो इट इज द डेफिनेट शेप एंड साइज प्रॉपर्टी, मतलब हर एक लिविंग बींग्स का एक डेफिनेट शेप और साइज होता है विच इज फिक्स्ड होते हैं। लेकिन नॉन लिविंग बींग्स के कोई डेफिनेट शेप और साइज नहीं होते हैं, विच कैन बी मूल्ड एंड विच कैन बी टर्मिनेट इजिली। हम उसको खत्म भी कर सकते हैं या उसके शेप को हम चेंज भी कर सकते हैं, जिसे हम नॉन लिविंग कहते हैं। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन इज अ टर्म विच इज रिलेटेड टू ऑर्गेनिज्म। मैंने ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया कि ऑर्गेनाइजम्स जो होते हैं जनरली वो एक इन सारे स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है। जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म सेल से, टिश्यू से, ऑर्गन से, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम, जब पूरा ऑर्गन सिस्टम हमारे बॉडी में डेवलप हो गया इंक्लूडिंग किडनी, लिवर, हार्ट वगैरह, तब जाके एक प्रॉपर ऑर्गेनिज्म बनता है। इसी प्रोसेस को हम ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से जानते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब होता है प्रॉपर मेंटेनेंस एंड वेल इक्विप्ड ऑफ बॉडी फंक्शन इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। नाउ नेक्स्ट, growth and development. Every living beings has a growth and development property. I already told you in a definite shape and size में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका एक प्रॉपर डेफिनेट ग्रोथ और डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। डे बाय डे वो अपने ग्रोथ को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, डेवलप करते जाते हैं, ठीक है। और उनके बॉडी में एक ऐसा समय आता है जब वो पूरी की पूरी मेटाबॉलिक और इंटरनल ग्रोथ जो है वो स्टॉप्ड हो जाती है। सो हियर वी हैव डिस्कस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपर्टी। मीन्स ग्रोथ का मतलब होता है कि उनके शेप और साइज में चेंजेस होना, और डेवलपमेंट होना मतलब विस्तार हो रहा है वो, ठीक है। इन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स ऑल्सो एंड प्लांट्स ऑल्सो वी सी दैट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। हम ये सारा चीज उनमें देखते हैं। नाउ नेक्स्ट, एडाप्टेशन। एवरी लिविंग बींग्स नीड्स टू प्रॉपर एडाप्टेशन। एडाप्टेशन का मतलब होता है इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ होम where the human beings makes own self best suited for living। एक स्पेशल टाइप का एक ऐसा घर होता है, घर का मतलब इंक्लूडिंग ये 4 कमरों का नहीं, इंक्लूडिंग मतलब अपने एनवायरनमेंट में जहां इंसान अपने आप को रहने के योग्य बनाता है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एडाप्टेशन। उस पूरे एरिया को हम एडाप्टेशन कहते हैं। एंड एडाप्टेशन शुड बी बेटर एंड क्लीनलीनेस, ओके, साफ सुथरा और स्वच्छ होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एडाप्टेशन। एंड विच नीड्स टू ह्यूमन बींग्स ऑल्सो एंड एनिमल्स ऑल्सो। लेकिन कुछ एनिमल्स को उनकी जरूरत नहीं होती है बिकॉज दे आर मोस्टली फाउंड इन वाइल्ड एंड मोस्टली फाउंड इन फॉरेस्ट ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे वो जंगल में पाए जाते हैं और उनका जो फॉरेस्ट होता है वही उनका घर होता है। बट ह्यूमन बींग्स कैन नॉट सर्वाइव इन forest, okay, most important. So adaptation should be clear and eco friendly and well mannered. The second point, next point is that aging. After the proper adaptation, the aging required. Aging means the increasing growth of any living beings is called aging. एजिंग का मतलब होता है जैसे जैसे ह्यूमन बींग्स ग्रोथ करते जाते हैं उनकी जो एज है वो बढ़ती जाती है। तो जब वो एज बढ़ती है उसी प्रोसेस को हम एजिंग के नाम से जानते हैं, विच इज फिक्स्ड इन नेचर बट इट विल फाउंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टमैटिक चेंजेस इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। अगर आप अलग अलग कंट्री की बात करेंगे तो उनमें जो एजिंग का प्रोसेस है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि अगर हम जापान और इंडिया का कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ के लोग जो हैं वो जनरली सर्वाइवल कैपेसिटी मोर देन 80 इयर्स, हमारे इंडिया की जो अप्रॉक्स होती है वो 60 to 80 के बीच में होती है, ठीक है। मैक्सिमम ऐसे होते हैं जो 60 से 80 के बीच में ही डेथ कर जाते हैं। लेकिन जापान में मोस्टली जो ह्यूमन बींग्स है ड्यू टू देयर ईटिंग हैबिट एंड वेल इको फ्रेंडली नेचर्स दे आर कैपेबल टू सर्वाइव अ लॉन्ग टाइम। वो बहुत लंबे समय तक जिंदा रहते हैं, ठीक है, विच मे बी 100 years, 110 एंड मैनी मोर ऑल्सो।
नाउ नेक्स्ट एजिंग का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो उनका एक प्रॉपर एज होता है, उसके बाद वो रुक जाते हैं, एंड आफ्टर द स्टॉपिंग पीरियड इज कॉल्ड एज। एंड डेथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे क्लास, डेथ मीन्स इट इज अ नेचुरल फिनोमिना। जो भी पैदा हुए हैं उनको एक दिन तो डेथ के स्टेज में पहुंचना है, एंड डेथ इज अ स्पेशल एंड नेचुरल फिनोमिना विच कैन नॉट बी अल्टर्ड, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। और ये सब जितने भी फीचर्स हैं, ठीक है, ये सब लिविंग बींग्स के फीचर्स हैं बाय विच वी कैन नो एंड क्लासीफाई इजिली all the properties of living beings. So I think today I have cleared most of the important parts of your diversity in living organisms, and tomorrow I will also take some small part of that, and we will also discuss some detailed sections of your chapter. Till then, keep revises all the things and make a complete notes. Okay, thank you, student.